grace the dais. My third invitation is for Dr. Vishal Sharma to come forward and grace the dais. Now I am going to invite one of our guest speaker, Dr. Eliza Sharma. She is not a new face for us. Do I need to tell about her? She is from Himalaya Wellness Company. Dr. Eliza, please come forward and grace the dais. Last but never the least, I am extending the invitation to Dr. Rimpaljeet Kaur from the Anand Ayurvedic College. Ma'am, please come forward and grace the dais. From the dais to come forward for Shri. And grace the dais. My third invitation is for Dr. Vishal Sharma to come forward and grace the dais. Now I am going to invite one of our guest speaker, Dr. Eliza Sharma. She is not a new face for us. Do I need to tell about her? She is from Himalaya Wellness Company. Dr. Eliza, please come forward and grace the dais. Last but never the least, I am extending the invitation to Dr. Rimpaljeet Kaur from the Anand Ayurvedic College. Ma'am, please come forward and grace the dais. From the dais to come forward for Shri.
It's visible? I would not bore you, but still want to take at least 15 minutes of your time. I have something new. As usual. It's not stale, I promise. You will also go home with some new knowledge. A very pleasant afternoon to you all. Thank you so much for being here with us today. मैं हर बार कोई कहानी लेके आती हूँ और किसी कहानी से शुरू करती हूँ. But आज it's something different. The occasion is something different. Today I am honored and it's my privilege to be sharing this stage with Dr. Dimple. Why do I say her name? Had it not been for these teachers who taught us, we would not have been here. So yes, please give her a huge round of applause, everybody. Like I am also privileged to have my classmates. तक ही सीमित है? नहीं. तक ही सीमित है? नहीं. Way back in 1836, they were talking of fatty liver. Liver का सिर्फ capacity है 5% fat store करना. When it's more than that, we have to decrease. And fasting is so important. It can reverse fibrosis, guys. Fasting is that important. It can reverse the fibrosis also. Fasting for how many days? So it depends. It is often said, एक दिन के लिए हर हफ्ते fasting करनी है. Yes. I had a very interesting conversation with the doctor. He said, हम diabetes के patients को कहते हैं fruits खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ पर बार बार खाओ. But he had a different concept. It was a beautiful concept. He said हमें insulin ही तो secrete नहीं करानी. Like diabetes है, बहुत सारी insulin, we are trying कि insulin बार बार secrete हो. But he said what he had the thought was उसको लंघन कराओ. किसी को सबसे पहले आम का पाचन कराते हैं. She gives me 52. हम कोई गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, कोई टैबलेट दे सकते हैं. That is all up. Please let us know in what all conditions do you use. किन conditions में डोज ज्यादा देनी पड़ती है, किन conditions में नॉर्मल डोज देके बहुत ज्यादा अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है. Because you are the doctors, you are the people who do clinical trials every. Please share your feedback so that we can help this product improve. अगर आपको लगता है कहीं और भी मार्केट में कोई गैप है, कुछ नया लेके आना है कहीं, please do share it. These are very few of the indications that we say. मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से लेकर आज इस लेवल पे देखना कि हाँ वो इतने अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं और इतना अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं ना. बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए. और कुछ स्टूडेंट तो मेरे ऐसे ही है कि जैसे वो मेरी क्लास में आते थे आज भी ऐसे हैं. अभी आए मेरे पास बैठे तो वो बैठ भी नहीं रहे डर के मारे कि हाँ मैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जा, अब तो बैठ सकते हैं हम एक साथ, है ना. तो बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को ऐसे देख के. बहुत नहीं, रिस्पेक्ट तो है, वो तो कोई डाउट नहीं है. और वैसे भी ये अलीजा, अर्शिया, आशिमा, इनका मेरा फर्स्ट बैच है तो इन बच्चों से तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट है. मुझे आज भी याद है जब मैं इनकी क्लास में फर्स्ट टाइम हूँ ना, तो चलो सॉरी दैट कि इमा के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जसजीत जी, तो उन्होंने है ना रोज वो कॉल करते हैं, रोज मुझे रिमाइंडर देते थे एज एन आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट से. तो क्या लाइफ में हमारी उसका रोल है इसका. तो आप बताओ कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी को जो सबसे पहला गिफ्ट मिलता है बाय बर्थ वो क्या है. सॉरी, ब्रीदिंग. ओके. और ब्रेस्ट फीड नहीं. सो पहला गिफ्ट जो ह्यूमन बॉडी को मिलता है दैट इज द हेल्थ. राइट. जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले तो हमें अच्छी हेल्थ ही मिलती है ना. तो हम इस, क्या आपको लगता है कि हम इस हेल्थ की वैल्यू करते हैं? नहीं करते. तो हमें इस हेल्थ की वैल्यू कब होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल बेड पे होते हैं, तब हमें याद आता है ओहो अगर हमने ये कर लिया होता तो शायद आज हम कहीं और होते, है ना. तो सेम ऐसा ही होता है कि बच्चों में भी ऐसा ही होता है कि ओहो जब अगर मैडम ने बोला था उस टाइम हमने पढ़ लिया तो आज कहीं और होते, है ना. तो इसका कारण क्या है कि अगर हम अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? एक ही एक चीज है कि जिसके कारण जो आजकल जो हॉस्पिटल्स में
डे बाय डे नंबर ऑफ द पेशेंट इंक्रीज हो रहा है ना, कि नंबर ऑफ डिजीजेस बढ़ती जा रही है, नंबर स्टाइल डिसऑर्डर है वो किसके कारण हो रहे हैं, हमें इरेटिक लाइफस्टाइल के कारण। सो आयुर्वेद में लाइफस्टाइल की डेफिनेशन की बात कर ले तो लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल इज ए culmination of physical capacity and psychological function reflecting on our habits, behavior, diet and the living pattern. So तीन चीजें जो आयुर्वेद में कब से बोल दी गई कि त्रि उपस्तंभ है, मीन कि जो बॉडी के तीन उपस्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, है ना, तीन बोले गए हैं ना, शायद आप सभी को याद होगा। तो सेम लाइफस्टाइल की जो डेफिनेशन है उसमें भी यही ऐड कर लिया गया है कि लाइफस्टाइल क्या है, कि जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन तो है ही है, लेकिन उसमें वो क्या है, लाइफस्टाइल भी है, डाइट भी है और स्लीप पैटर्न भी इंक्लूड होता है। और आयुर्वेद ने जो हमारा एरेटिक लाइफस्टाइल है तो उसको किससे कंपेयर किया है? प्रज्ञापराध से। प्रज्ञापराध सुना होगा आप सबने, आयुर्वेद से फील्ड से हैं हम, है ना, सबने सुना है कि ये प्रज्ञापराध। सो प्रज्ञापराध बेसिकली क्या है? प्रज्ञापराध इज द इंटेलेक्चुअल इम्बैलेंस विच वी ऑल इंक्लूडिंग इवन मी, जैसे आज हमने क्या किया कि एक तरफ तो हम लेक्चर देने आए हैं, है ना, कि ऐसी डाइट होनी चाहिए, ऐसे सोना है, ऐसा ये करना, और खा क्या रहे हैं हम, जिसके बारे में बोल रहे हैं वही खा रहे हैं। और जो बच्चे हैं ये तो होंगे बड़ों में, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन है उनमें भी डायबिटीज डेवलप हो रही है। नंबर ऑफ आईवीएफ सेंटर देख लो आप, है ना, नंबर ऑफ स्पर्म बैंक देख लो, दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उन सबका कारण क्या है? यही है। सो हार्मोन क्या है? अब हार्मोन क्या करते हैं? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जो हार्मोन है बेसिकली वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को इफेक्ट नहीं करते, मेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। मोस्टली यही माना जाता है कि जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स को ही, कि हाँ हार्मोन में ऊपर नीचे हुआ तो वो फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हार्मोन्स हैं वो मेल्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं। स्लीप पैटर्न ठीक करेंगे। अगर इन तीनों चीजों से नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मेडिसिन देंगे, है ना, हर्बल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हर्बल ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा देन हम क्या करेंगे? संशोधन चिकित्सा करेंगे। तो हमारे पास पंचकर्मा। तो डेफिनेटली कि अगर हम इतने ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, लेकिन मॉडर्न में क्या है? हार्मोनिकल इंजेक्शन, सिर्फ वो हार्मोन देंगे, है ना, उसको लेवल पे लेके आएंगे, लेकिन उसका क्या है? साइड इफेक्ट बहुत है। लेकिन हमारी चिकित्सा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज से ही चाहे हम कोई एक चीज ही बदलें अपने में, सभी लोग, है ना, इंक्लूडिंग मी, तो हमें सबको एक प्रण लेना चाहिए कि कोई ना कोई अपने डे टू डे लाइफ की जो भी है, हम कोई ना कोई एक चीज ऐसी बदलेंगे ही बदलेंगे। एटलीस्ट कि जो इन्वायरमेंट में नहीं, हमारी हेल्थ पे जो इफेक्ट डाल रही है, हम उसको तो सही कर सकते हैं ना। कि अगर हमने 5 साल और जीना है तो हम उसको चेंज करके 2 साल अपनी जिंदगी के शायद और बढ़ा लेंगे, राइट। पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक। My question to you. In Ayurveda, Invitation is for our worthy President Dr. Jasdeep Singh Bholavasia to grace the dais. Mr. Keval Krishan ji and Mr. Sanjeev Gupta ji for always a very good coverage and making this possible for us to send our message to the community. Thank you so very much.
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पलजीत कौर। मैं HOD और एसोसिएट प्रोफैसर हाँ डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान इन दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਮਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PCOD ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ PCOD और PCOS बारे भी ਉਹਦੇ ट्रीटमेंट बारे भी डिस्कस किया। हाँ जी डॉक्टर। नमस्कार। आज यहाँ के एक स्थानीय होटल में आइमा की मंथली बैठक हुई है, मंथली मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर रिम्पलजीत कौर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें PCOD पे बताया और उसको आयुर्वेदिकली कैसे क्योर किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। मैं क्योर तो नहीं बोलूँगी, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताया। थैंक यू डॉक्टर रिम्पलजीत कौर। मैं आइमा के भी पे आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर जसीर सिंह भोलोवासिया प्रधान आइमा की अध्यक्षता में हमारे ऐसे ही एजुकेटिव मीटिंग्स और होती रहेंगी। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, आज ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੋਵਾਸੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਮਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ